अनुपम वासिता में आओ साहेब जी, अनुपम वासिता में आओ साहेब जी। हे आओ साहेब जी, आओ रे वालाम जी, भक्त बोलावे आजे हैया केरा भाव थी। आंगण उत्सव बनी आओ साहेब जी, अनुपम वासिता में आओ साहेब जी, अनुपम वासिता में आओ साहेब जी। न जाया श्री जी नवाला, चैतन्य मंदिर ना ओघड़ नारा। योगी न जाया श्री जी नवाला, चैतन्य मंदिर ना ओघड़ नारा। योगी ना लाल तमे छोहित शरणु दे जोरे हमने चरणों मां स्वीकारी जी। आंगण उत्सव बनी आओ साहेब
सीता में आवो साहेब जी। अनुपम वासिका में आवो साहेब जी। आवो साहेब जी, आवो रे बालाम जी, भक्तो बोलावे आजे हैया केरा भाव थी। आंगण उत्सव बनी आवो साहेब जी। એમાં એ સંતો નીકળી ગયા, હરિપ્રાય સ્વામીને સંતો નીકળ્યા 40. ગુરુજીને આ લોકો તો બધા ગામડામાં રહેલા ને સીધા સોકડા આવી ગયા. સોકડા જોયું ને મંદિર, ઉપર માન ઉપર પતરા, નીચે તો રહેવાનું સંતોનું ઉપર, નીચે તો મંદિર એટલે રહેવાય નહીં ને. ઉપર એલ્યુમિનિયમના પતરા, એટલે ઉનાળામાં તો 42 ડિગ્રી ટેમ્પરેચર, એટલે ગરમીમાં ગુરુજી બધા હતા. 2-3 વર્ષ બહુ પછી સાંકળદા ગયા. ગુરુજી 3-4 સંતોને ભણવાનું હતું સંસ્કૃત. પહેલા છોકરા રોડ નતો, વરસાદ પડે ને એસટી બંધ થઈ જાય, 4 મહિના એસટી બંધ થઈ જાય. પછી એટલે પ્રોફેસર અમને કાકાએ કહ્યું કે આપણે બાપાએ કહ્યું કે સંસ્કૃત ભણો, એટલે સંસ્કૃત તો ચાલુ રાખો. એટલે ગુરુજી પેલા 2-3 સંતો બનતા હતા, પણ વડોદરાનો પ્રોફેસર એસટી બંધ થાય એટલે આવી ના શકે, તો સંસ્કૃત ભણવાનું બંધ થઈ જાય. કાકાને એવું કે પછી સાંકળદા બધા ભક્તો મળ્યા, રજા લેવી પડે ને, કારણ કે મંદિરમાં પાછા ઉપરથી પોળ શાક તમે કાઢી મૂકો, બધા અપાય. પછી ગુરુજીને શિફ્ટ કરીને ભેગા સાંકળદા અક્ષરભાઈને સંતો પણ ગયા. ગુરુજી સાંકળદા 68 ત્યાં કાકાજી મંદિર કર્યું, અત્યારે છે ને મંદિર. શરૂઆતમાં બહુ તકલીફ પડી, એટલે આ વ્યવહારિક, બાકી સંતોને તકલીફ નથી. ભગવાનને રાજી કરો મંડે ને તો કશું દેખાય નહીં ને, જમવાનું, પૈસાની, ફાઇનાન્સ. Swaminarayan, 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 Swaminarayan,
આજે પોતે આવીને અમને મળ્યા હરી. સંત સ્વરૂપે આજે પોતે આવીને અમને મળ્યા હરી. મળ્યા હરી રે અમને મળ્યા હરી. મળ્યા હરી રે અમને મળ્યા હરી. દિવ્ય અનુપમ કાયા તારી જીવતું જાગતું દામ. તારા દ્વારા કરે શ્રીજી કામ આઠું જામ. દિવ્ય અનુપમ કાયા તારી જીવતું જાગતું ધામ. તારા દ્વારા કરે શ્રીજી કામ આઠું જામ. તારા દ્વારા કરે શ્રીજી કામ આઠું જામ. તારા દ્વારા કરે શ્રીજી કામ આઠું જામ. તારું વર્તન છે ઉપદેશ એણે પલટાવ્યા અમવેશ. તારું વર્તન છે ઉપદેશ એણે પલટાવ્યા અમવેશ. તને પ્રાર્થું હું હંમેશ મારા અંગો અંગમાં બેસ. મારા અંગો અંગમાં બેસ. મારા અંગો અંગમાં બેસ. જેને લાગે જેને લાગે તારી માયા માયા એની ભાગે તે પડતી હરી. મળ્યા હરી રે અમને મળ્યા હરી. મળ્યા હરી રે અમને મળ્યા હરી. રૂડી તારી મૂર્તિમાં શ્રીજી દેખાય. મીઠી તારી વાતડીમાં સ્વામી સંભળાય. રૂડી તારી મૂર્તિમાં શ્રીજી દેખાય. મીઠી તારી વાતડીમાં સ્વામી સંભળાય. મીઠી તારી વાતડીમાં સ્વામી સંભળાય. મીઠી તારી વાતડીમાં સ્વામી સંભળાય. આત્મ એને પગે લાગ. તારા ખુલી ગયા ભાગ. તારા ખુલી ગયા ભાગ. આત્મ એને પગે લાગ. ફરી આવો ન આવે લાગ. તારે માંગવું હોય તે માંગ. તારે માંગવું હોય તે માંગ. તારે માંગવું હોય તે માંગ. મારા હૈયે અખંડ તમે કરજો નિવાસ. પ્રભુ કૃપા કરી. મળ્યા હરી રે અમને મળ્યા હરી. મળ્યા હરી રે અમને મળ્યા હરી.
अक्षर बिराजता रे तारी आँखों अक्षर बिराजता रे तारे शब्दे स्वामी नारायण गाजता रे तारे शब्दे स्वामी नारायण गाजता रे मुने वालू जोगीड़ा तारू मुखड़ू रे मुने वालू जोगीड़ा तारू मुखड़ू रे। तारे भाले आठमनो चांदलो रे तारे भाले आठमनो चांदलो रे तारी चादर छे मावड़ी नो पल्लो रे तारी चादर छे मावड़ी नो पल्लो रे मुने वालू जोगीड़ा तारू मुखड़ू रे मुने वालू जोगीड़ा तारू मुखड़ू रे। विराजमान सर्व वाला संतों भक्तों की जय जय जय। संत लोग और हमें बहन आई है, गुरु जी के सानिध्य में बैठकर गुरु जी की तबीयत अच्छी देखकर खुशी हुई, आनंद हुआ। अच्छा है गुरु जी, सबने इतना भजन किया, धुन की। हमने भी लंदन और मोगरी मंदिर में भी संत लोगों ने प्रार्थना भजन करके भक्ति अदा की। गुरु जी स्वामीनारायण भगवान योगी जी महाराज ने हम दिल्ली वासियों के और हम गुनाती समाज को मिली हुई बहुत अद्भुत भेंट है। योगी जी महाराज बोलते थे, मेरी 60 वर्ष की तपश्चर्या को फल ये महान स्वामी और संत लोग हैं। महान स्वामी के सानिध्य में जो 51 युवाओं ने दीक्षा दी, योगी महाराज का बहुत बड़ा संकल्प था उस टाइम पर। शास्त्री जी महाराज ने अपना देह छोड़ दिया और योगी जी महाराज गादी पर विराजमान गुरु के रूप में हम सबके हृदय में स्थान लिया। तब से उनकी ख्वाहिश थी, उनका संकल्प था, हम सबको स्वामीनारायण भगवान का जो संकल्प था क्षतिदेह सुख शांति आनंद देने का, तो इसके लिए योगी महाराज ने संकल्प किया कैसे संत लोग की तैयारी हो। तो योगी बापा 1952 से बोले कि हमको 51 युवाओं को दीक्षित करना है, भगवा कपड़े पहना कर साधु बनाना है, पढ़े लिखे। और ये योजना में दादू काका को सिलेक्ट किया। काका जी को 3 फरवरी को साक्षात्कार हुआ। हम जानते हैं उस टाइम से योगी दादू काका ने योगी महाराज का जो महात्म्य प्रसराया। ऐसे तो बापा को सब मानते थे, लेकिन अच्छे साधु के रूप में सबकी बात सुनते थे, सब बोले ऐसे करते थे, सबको हित प्रेम से बुलाते थे। वो खुद सबकी सेवा करते थे, इसलिए हम सबको उनके प्रति प्रेम था। एक अच्छे साधु है, लेकिन ये स्वयं प्रभु का स्वरूप है। शास्त्री जी महाराज ने जो अक्षर पुरुषोत्तम उपासना का प्रवर्तन किया, स्वामीनारायण भगवान खुद आशीर्वाद में बोले थे कि पृथ्वी पर हम आए हैं तो अब 10-20 पीढ़ी इधर रहेंगे,
गुणातीत पुरुष के द्वारा। और गुणातीतानंद स्वामी वो है मेरे मूल अक्षर ब्रह्म अक्षर धाम है, मेरे रहने का धाम है। ऐसे जो साधु गुणातीतानंद स्वामी ने गुणातीत भाव का अपने जीवन के वर्तन द्वारा दर्शन कराए। कैसा जब भाव गुणातीत भाव में रहता है साधु, जिसका एक ही काम है, उनके संबंध में जो कोई आए उनको सबको प्रभु में जोड़ना और प्रभु राजी था ऐसे समझदारी उनके दिल में स्थापित करना। ऐसे जो साधु है गुणातीतानंद स्वामी के पास बहुत बड़े सौराष्ट्र में तो बहुत संत लोग हैं। एक बड़े आश्रम के पीठाधीश महनलेश्वर गुणातीतानंद स्वामी के पास गए थे। उन्होंने बहुत सुना था गुणातीतानंद स्वामी के बारे में, तो उनके दर्शन के लिए गए, उनके साथ बैठे थे। फिर बातचीत करते करते उन्होंने बहुत प्रश्न किया स्वामी गुणातीतानंद स्वामी को, आप कब संस्कृत पढ़े लिखे हैं? गुणातीतानंद स्वामी कहे नो। आप श्रीमद् भागवत गीता की कथा करते हैं? तो कहे नहीं, वो भी नहीं। ना बोलते रहे। तो फिर वो बड़े संत ने गुणातीतानंद स्वामी को पूछा, तो आपको आता क्या है? पूरा सेरठ देश के भक्त लोग आपको प्रभु के रूप में मानते हैं, पूछते हैं, तो आप क्या करते हो? क्या करते हो तो सबको इतना भाव होता है। तब गुणातीतानंद स्वामी बोले कि छोटा बालक होता है, वो कादव कीचड़ में खेलते कूदते गंदा कपड़ा बन जाता है। उनकी माँ उनको लेकर स्नान कराती है, कपड़ा बदलती है, अच्छे कपड़े पहनकर उनके पिता के हाथ में देती है, तो उनका पिता उनको रहने रमाड़े थे। बस वही काम हमको आता है कि जगत रूपी माया में जो मानव हठमान ईर्ष्या काम क्रोध दोष से पीड़ित है और दुखी होते हैं, इस सब को उनसे फ्री करके, उनमें से फ्री करके प्रभु के चरण में हम उनको रख देते हैं, वही हमको आता है कहते हैं। तो गुणातीत साधु का वही काम है। ऐश्वर्य प्रताप रिद्धि सिद्धि चमत्कार दिखाने वाले बहुत साधु संत मिलेंगे, लेकिन हमारे भीतर के देह भाव जो है, जिसको बोलते हैं अहंकार ईगो, और इनसे हठ मान ईर्ष्या और काम क्रोध दोष उत्पन्न होते हैं, उनमें से हमको फ्री करके प्रभु के सानिध्य, प्रभु की स्मृति का, प्रभु की प्रसन्नता को आनंद दिलवाए, ये गुणातीत साधु का कार्य है। और ऐसा साधु को पहचानना बहुत मुश्किल है, क्योंकि महाराज को दादू काका ने बताया। और अक्षर पुरुषोत्तम उपासना में प्रगट में उपासना, भगवान आए नहीं थे, भगवान गए नहीं है, भगवान आने वाले नहीं, भगवान है ने है, ऐसा जो मानना वो अक्षर पुरुषोत्तम की उपासना बोलता है, प्रगट की उपासना। और जब एक प्रगट की उपासना के निष्ठा बन जाए तब आत्मा का कल्याण होता है। ये बात दादू काका ने गौर शोर से सुनाई। योगी महाराज का प्रभु के रूप में महात्म्य बढ़ा। ऐसे युवान लड़के लोग बापा के हेत प्राण में जबोरा करो 1961 में इसे महान स्वामी के सानिध्य में दीक्षित हुए। उनमें से गुरु जी भी है, पापा का अत्यंत प्रसन्नता को पात्र। पापा इसने बोला कि मेरे 60 वर्ष की तपश्चर्या का एक परिणाम है, इसे साधु तैयार करके हमको भगवान ने, क्योंकि महाराज ने भेंट दी है दिल्ली वासियों के लिए।
और आप सबको भी बहुत बहुत अभिनंदन है कि आप उनको प्रभु के रूप में स्वीकार करके उनकी सेवा करते हैं। अच्छे साधु के रूप में नहीं। एक भजन गाया, माया हरे रे हमने माया हरे संत स्वरूपे, तो फिर बोले राकेश भाई गुरु जी स्वरूपे हमने મળ્યા, वो राइट शब्द में यही प्रकट की उपासना। ऐसे साधु द्वारा हमको प्रभु मिले हैं। और उनका कार्य क्या है? हम सबको हर मन ईर्ष्या के भाव से ऊपर उठाकर काम क्रोध दोष रहित करना, प्रभु का सुख लेते यही देह में करना है। तो उनके लिए वो विविध प्रकार के प्रयोग करते हम पर। समय उत्सव करते हैं, जन्मदिन बनाते हैं, दार्जिलिंग ले जाते हैं, लुधियाना ले जाते हैं, चौक में बैठ के आनंद कराते हैं। और वो भी एक प्रकार है बीमारी ग्रहण करना, वो भी उनका प्रकार है बीमारी ग्रहण करना। गुणातायन स्वामी ने बीमारी ग्रहण कर थी। 3 दिन रूम में सो रहे थे, फिर बाहर आए, स्तंभ के नीचे पंगाठी मार के बैठ गए। तो सभी मंदिर और कर्मयोग पर तो सबको समाचार भेज के गुणतान स्वामी सभा मंडप में बैठे हैं, दर्शन देते हैं। पूरा हॉल हकड़े ठोक गया दर्शन के लिए। हम रोज दर्शन करते थे, लेकिन 3 दिन दर्शन नहीं और बीमारी ग्रहण की थी। फिर सब आकर बैठे। गुणातान स्वामी के मटको मार्या वगर दर्शन करता था, आँखનું मटको मार गुणातान स्वामी नाम એટલા પ્રભુના ભાવથી દર્શન કરતા હતા। फिर गुणातान स्वामी बोले, ये जो आप दर्शन कर रहे थे भाव से, वही कराना है हमको, वही करना है, मेरे और देखते रहो। तो उनके बीमारी नो अपन अपना उत्थान माटे तो भजन करવું એ કરવું। પેલું ભજન છે ને, तारा संकल्पे अमे आट ले आव्या, मस्त तारी मूर्ति हेवा मुकाव्या। तारा एमनो संकल्प है। અહીં બેઠેલા છે, કોઈને વિચાર આવે તો ભ્રમરપ થવું છે, બોલો આંગળી ઊંચી કરો। विजयपाल जी सोचा था ब्रह्मरूप होना है, ब्रह्मरूप क्या वही मालूम नहीं था। फिर बोलने सोचने के बाद ही कहाँ है। आपने अग्रवाल जी चार्टर्ड अकाउंटेंट, सोचा था ब्रह्मरूप होना है, एमनो संकल्प, तारा संकल्प हमें आठ लाया। उसका जो संकल्प था हम सबको सुख, उनके साथ आए, उनकी सेवा की, उनके पास आए। मस्त तारी मूर्ति, गुरु जी की मूर्ति एग्जेक्ट गुणातान स्वामी मूर्ति जेवी मूर्ति है। सालों पहले एक भगत आया था इधर, तब तो गुरु जी की मूर्ति नहीं थी, लेकिन गुणातान स्वामी मूर्ति का दर्शन करके गुरु जी को बोले, आपने तो आपकी मूर्ति लगा दी है मंदिर में। गुरु जी की मूर्ति जी। तारा संकल्प में हाथ लाए, मस्त तारी मूर्ति है। मूर्ति के लिए आनंद विभोर है। गुरु जी आनंद स्वरूप है, आनंद करावे छे बधी रीतनो। साथे साथे एटला जीनियस पण है, बुद्धि बहुत बुद्धिशाली। उनका जो इंटरप्रिटेशन, स्पिरिचुअल इंटरप्रिटेशन, वो सुनने लायक होते हैं। आनंद के साथ अपनी जो समझन वो प्यार करते रहते हैं। किस तरह की निष्ठा होनी चाहिए, किस तरह के साधु से जुड़ जाना, किस तरह साधु की आज्ञा में रहना, किस तरह से संस्कृत व्यक्ता योगी महाराज का जो ये है ब्रह्मसूत्र संस्कृत व्यक्ता रख
हिल मिलकर सब काम करो, निर्दोष भाव युक्त सेवा करो। ये बहुत कठिन साधना है। गुरु जी अपने पास रहकर, गुरु जी के अपने पास रखकर हमको इतने बोला मस्त तारी मूर्ति हैवा मुकार हैवा એટલે अनंत जन्म उनका जो पास है। योगी जी महाराज एक वार्ता बोलते, वार्ता कहते थे। एक राजा शहर में निकला होगा तो एक लड़की पर उनकी दृष्टि पड़ गई। बहुत बहुत सुंदर छोकरी जोई ने तक मारे जो लगन करूं, मुझे उनके साथ शादी करना है। एकदम रोड़ी रूपाड़ी, एकदम सरस छोकरी। वो वाघरन थी। वाघरन हमारे गुजरात में वाघरन क्या बोलते हैं, हर एक घर को शाम को जाए और बोलते कि गंगा मैया है, जमुना मैया, हमको खाधा कुछ जो बचा आए वो जूठा हमको दो। ऐसे बोले तो जो कुछ अपने पड़ा वो देते, फिर उनका पूरा घर उनसे भोजन करते। ऐसे भिक्षा पर नपने वाला पूरा ज्ञाति, रसोई नहीं बनाते, ऐसे लेकर खाते। उनके बहुत सुंदर थी, इसलिए राजा ने पसंद की कि मेरी शादी उनके साथ करनी है। उनका तो नसीब खुल गया। राजा के साथ शादी के लिए रानी बन गई, राज रानी। लेकिन क्या हुआ कि रानी बनने के बाद वो लड़की सुकई न, हिंदू में सुके सुकई गई ना, उसका वेट रिड्यूस होने लगा। क्योंकि बापा बोला कि चापड़ा जेवी થઈ ગઈ, હાવ પાતળી થઈ ગઈ। એટલે राजा ने बोला कि उनको क्या हो गया, दवा नहीं करवाते हैं? तो राजा के तो वहाँ तो वैद्य हकीम कितने कितने अच्छे अच्छे डॉक्टर सबको बुलाए गए, सबकी ट्रीटमेंट शुरू हो गई। 6 मास हुआ, किसी की ट्रीटमेंट की उन पर असर नहीं हुई, उन भी रिड्यूस होने लगी और पूरे एकदम स्केलेटन बन गए, एकदम लड़की। राजा दीवान को बोला कि आप क्या करते हो, कुछ अच्छे ध्यान नहीं रखते हो, आपके साथ मारो। दीवान ने देखा, दीवान ने तपास करी, वो लड़की कौन थी। फिर मालूम हुआ तो ऐसे मांग भाग के खाने वाली थी। और इधर तो दास दासियों थाल लेकर भोजन तैयार कर डाइनिंग हॉल में सोनानी थारी, और डाइनिंग हॉल में बैठना और खाना उनको नहीं अच्छा लगता। फिर दीवान ने क्या, एक रूम बनवाया, रूम में अलग अलग जगह गौख बनाए और वहाँ भोजन के टाइम पर रख देते, दाल रखते, भात रखते, साग रखते, दूध आइटम रखते, फिर उनको अंदर भेज देते पत्थर लेके, थाल लेकर। तो वो गौख के सामने खड़ी रहती, बोलती, हे गंगा मैया, आपके घर में जो कुछ बदा घटा जूठा है हमको दे दो। तो पी इसमें से लेकर लेती बधे, पी नीचे पलाठी वाइन बाइन जमे। 6 महीना में तो बराबर थी गई, एकदम अच्छी हो गई। तो राजा ने बोला कि दीवान आपने क्या कर दिया है, लड़की तो अच्छी हो गई था कि चलो मैं दिखाता हूँ आपको। तो राजा ने बोला, दीवान आपने क्या किया था? कि चलो मैं बताता हूँ। तो एक डोकाबारी में से दर्शन करवाए कि वो टाइम पर भीख मांग के इकट्ठे करके खाती थी। तो राजा ने सोचा कि लड़की को मालूम नहीं, अब तो राजरानी हूँ, फिर भी अपना जो वाघरण वेड़ा है, भीख मंगापना है, वो छोड़ते नहीं है, उनमें डूबी हुई है। निकाल दो उनको, कह दे, राजमहल के बाहर निकाल दे, काढ़ी नाखी। तारा संकल्प में हाथ लाया, मस्त तारी मूर्ति हैवा मुकाया। हम सब ऐसे ही थे, पूर्व जन्म का ऐसे कुछ लेकर आए हैं, उनको छोड़ाते हैं। क्या हो कहूँ, उनको छोड़ाते हैं। मस्त तरह उसको छोड़ाने के लिए कोई
विशेष कोई ट्रीटमेंट नहीं दी, पर गुरु जी की मूर्ति, मस्त मूर्ति, उनकी आज्ञा और सर्व एकता रख कर हरिमल कर दिए। इनमें भी अभी कुछ कुछ ऐसा होगा जो पूरा स्ट्रांग होगा छोड़ने के लिए, उसको छोड़ने के लिए ऐसा ग्रहण करते हैं कि है ही नहीं, याद रखो। हाँ, गुरु जैसे इसमें लिखा है। आप यहाँ आए हो ना, राहुल जी ये पढ़ो, आप यहाँ आए हो ना, अब बेफिक्र रहो। फिर ये जो है अभी कठिनाइयों में हम अपनी सोच छोड़कर क्या करें, कठिनाइयों ऐसा जब बनता है तो हम अपनी सोच छोड़ दो, क्या होगा, क्या बनेगा, शू थशे, केम थशे, अपनी सोच छोड़ दो। अपनी सोच छोड़कर प्रभु को ही उपायित होने दो। धून स्वामीनारायण 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 स्वामीनारायण। धून हर समस्या को हल करेगा ही। धून हर समस्या, बोला एक ही समस्या, दो समस्या, ये समस्या, कोई भी समस्या हो, देह की हो, मन की हो, धन की हो, कुटुंब की हो, आत्मा की हो, हर समस्या हल करेंगी ही शब्द लगाया। और वो इतना ईजी है, स्वामीनारायण 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 स्वामीनारायण। तो बोलता कि इनमें कुछ हो, ऐसा हो जाएगा। हालिया भील था, हम शांत, इतने निकम्म आदमी था, कोई घर उनके घर पे बुलाए हुए नहीं, मार फाड़, खून, खाना पीना सब में पूरा था। लेकिन नारद जी गुरु के रूप में मिल गए और नारद जी ने बताया कि क्या कर रहा है तो, कितना जन्म लेना पड़ेगा भुगतने के लिए। उनको समझ में आया। बोलो क्या करूँ, तो कहे पेड़ के आसपास राम राम बोल के धुन लगाना, मैं आऊँगा तब। 5 साल के बाद जब नारद जी आए, दाढ़ी जटा बढ़ गई और राम राम बोलते 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 वो वालिया में से ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, वाल्मीकि ऋषि बन गया, जिन्होंने महाभारत और रामायण दिया। क्या साधना क्यों, एक मंत्र जाप करते रहे। जो पण वरताला बारवटिया था, क्या होना। स्वामीनारायण भगवान के संबंध में आए, उनके आज्ञा में रहा, परम एकांतिक हो गए। यही हम पर ब्रह्म का तत्व है, गुरु जी के हम मिले हैं। एक हवे एमना तरफ दृष्टि, उनको ही राज्य करने का भाव है, या बढ़ता जाए और सर्व एकता से काम। गुरु जी की हाजिरी, गुरु जी के समागम से, गुरु जी की बातों से, गुरु जी के दर्शन से, गुरु जी के साथ हित प्रेम से दिल्ली संत समाज और गृहस्थ समाज, युवान समाजों में एकता बहुत है। सर्व एकता जो है, इसका दर्शन क्या होता है, ये मैनेजमेंट में है। जितना कम बोलो तो भी काम हो जाता है, वो देश मैनेजमेंट कुछ भी। इधर आपको कोई बोलते नहीं सुनाई पड़ेंगे, लेकिन काम चलता है एग्जैक्ट, टाइम टू टाइम सब होता रहता है। वो क्या है, प्रभु की हाजिरी ये दिखाता है। पावर हाउस है, पावर हाउस खरेखर। आप बहु भीड़ बैठो છે, તમારા સંકલ્પ જ આખો ડેવલપ થયો। દિલ્હી કાકાજીના પ્રેમને લીધે, કાકાજીના હેતને લીધે દિલ્હીના પાયામાં મારે આવવાનું થયું છે, કાયમ આવવાનું થયું છે હરેક પ્રસંગે। बस गुरु जी को यही प्रार्थना, गुरु जी राजी रहो, सब पर आशीर्वाद बरसाते रहो, और शताब्दी मनानी है आपकी, ऐसा करना है।
शांति का अनुभव हो रहा है, तो वो उसके लिए ये जो एनवायरनमेंट है पीस और शांति का, वो मेरे को बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। ये सब संत पुरुष है, ये जो हमारे गुणातीत संत हैं, हमारे पास सिर्फ यही अपेक्षा रखते हैं कि आप निरंतर भजन करते रहो, जो भी काम करते हो वो भजन करते करते करो, तो काम का पास नहीं रहे, काम से आप डिटैच रहोगे और प्रभु में अटैच होते जाओगे, पता ही नहीं चलेगा। तो उसने ये हमारे नए साल का मतलब विक्रम संवत 2082 का ये मंत्र दे दिया कि भजन करता करता क्रिया करो, भजन करता करता क्रिया करिसु तो जगत क्या खरी जैसे नहीं खबर पड़नी पड़े। गुणातीतानंद स्वामी जी ने बहुत अच्छी बात बताई है, जो हमारा उद्देश्य है, हमारा ध्येय है, हमारा जीवन मंत्र है। यदि हम भगवान, ये सत्पुरुष क्या करते हैं, वो यदि हम भजन नहीं करेंगे तो बीमारी ग्रहण करेंगे। हम क्योंकि हमें बहुत प्रेम है, गुरु जी हमें बहुत प्यारे हैं, हमारे जीवन प्राण है, कल तो माला लेके बैठ जाएंगे, स्वामीनारायण स्वामीनारायण स्वामीनारायण, गुरु जी जल्दी स्वस्थ हो जाए, गुरु जी जल्दी तबीयत से। यदि हम वो भजन चालू रखेंगे कि हर रोज क्रिया करते करते, तो गुरु जी कोई अपने शरीर पे कुछ लेना ही नहीं पड़ेगा, उसके पास और कुछ तो है ही नहीं शरीर के अलावा। आज का अनुभव ऐसा ही कुछ है। मुझे नहीं पता था कि साहब आपके साथ गुरुजी के भी आज दर्शन हो जाएंगे, मुझे ये आइडिया नहीं था, क्योंकि मुझे आपकी दिनचर्या का भी पता नहीं था कि इस समय यहाँ पर होंगे, क्या कैसा होगा क्या होगा। मैं तो पहली दफ़ा ही इधर आया, पर जिसे कहते हैं कि आज बोनस दर्शन हुए मैं यही कहना चाहता हूँ। और बस जीवन में कुछ कर रहा हूँ तो आपका आशीर्वाद रहे। अनुपम काया तारी जीव तू जग तू दाम, तारा द्वारा करे श्री जी काम आठू जाम। दिव्य अनुपम काया तारी जीव तू जग तू दाम, तारा द्वारा करे श्री जी काम आठू जाम। तारा द्वारा करे श्री जी काम आठू जाम, तारा द्वारा करे श्री जी काम आठू जाम। तारू वर्तन छे उपदेश एणे पलटाव्या अमवेश, तारू वर्तन छे उपदेश एणे पलटाव्या अमवेश। तने प्रार्थू हूँ हमेश मारा अंगो अंग मां बेस, मारा अंगो अंग मां बेस, मारा अंगो अंग मां बेस। जेने लागे तारी माया, माया एनी भागे ते पड़ती हरी। माड़ा हरी रे हमने माड़ा हरी, माड़ा हरी रे हमने माड़ा हरी। रूड़ी तारी मूर्ति मां श्री जी देखाय, मीठी तारी वातड़ी मां स्वामी संभळा। रूड़ी तारी मूर्ति मां श्री जी देखाय, मीठी तारी वातड़ी मां स्वामी संभळा। मीठी तारी वातड़ी मां स्वामी संभळा, मीठी तारी वातड़ी
धरीने गुरु आज्ञान शीश धरीने गुरु सभायो जाय साहेब जोगी न रंगे रंगा साहेब जोगी ना रंगे रंगा गुरु आज्ञान शीश धरीने गुरु आज्ञान शीश धरीने गुरु सभायो जाय साहेब जोगी ना रंगे रंगाय साहेब जोगी ना रंगे रंगा हमारे सौराष्ट्र में कई गांवों में ऐसा होता है, जो पानी आता है म्यूनसिपालिटी का, वो आप ग्लास में लो, वो कपड़े साफ ये करो तो भी नहीं निकलता, सॉल्यूबल हो जाता है वाटर में, पीने के लिए अच्छा नहीं है। तो क्या करते हैं लोग, तो शाम को मटले में पानी इकट्ठा कर देते, 10-15 मटले में दूसरे दिन के लिए। फिर आलम फटकड़ी, आलम मालूम है ना, फटकड़ी का एक ऐसा टुकड़ा सब में डाल देते हैं, सो जाते हैं, कुछ करने का नहीं है। सुबह जब उठते हैं तो जो कचरा है एलिमेंट से सब नीचे बैठ जाता है, प्योर वाटर ऊपर रह जाता है, तो वो वाटर निकाल के उसको गर्म करके पीते हैं। करना कुछ नहीं, फिर एलम का टुकड़ा अंदर रख दिया, पूरा सॉल्युबल एलिमेंट्स बाहर निकल गया। इस तरह अपने को करना कुछ नहीं है, गुरु जी की स्मृति में रहना, सब निकम में एलिमेंट निकल जाएगा। हम उनके स्मृति में रहना वही अपनी साधना है। और हम स्मृति में रहे इसलिए ऐसे बीमारी ग्रहण करते हैं। क्या करते हैं हम, सबकी दृष्टि गुरु जी की ओर। गुरु जी क्या करते हैं, अच्छा है, अच्छा हो गया, बाहर निकले है तो है, हम रहेंगे, गुरु जी बैठे होंगे, नहीं ऐसा नहीं। सतत 24 घंटे और 24 आवर्स हमें वृत्ति हमारे गुरु के चरणों में रहने बन जाए, तब हम पूरा ये बदल जाएंगे। तो एक करने के लिए ऐसा ग्रहण करते हैं, क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। लेकिन अपनी भक्ति बन जाती है, हम धुन करते हैं, हम आपकी मूर्ति में रहेंगे, हम भजन करेंगे, सब सेवा एकता रखकर हम सब काम करेंगे, मिलजुल कर रहेंगे, ऐसा संकल्प करके हम धुन करेंगे तो अच्छा हो जाएगा पाछा। उसके शास्त्री जी महाराज एक दिन 104 टेम्परेचर था, कितना 104, सब घबरा गए, सबने आइसोलेशन में रख दिया। स्वामी जी के पास किसी को जाने नहीं देते, 3 दिन हो गए थे। फिर ऐसे लोग आए थे दूर से, तो सबने बताया कि हम दूर आए से हमको दूर से दर्शन करने दो। फिर दरवाज़ा खोला तो शास्त्रीनंद बोला कि अंदर आओ, तो क्या बोले, सब अंदर गए, पास बैठ गए। फिर शास्त्री महाराज ने अक्षर पुरुषोत्तम के बारे में बातचीत शुरू की। फिर बोलते पहले सोते बोलते थे, फिर बैठ गए और बैठ के 2 घंटे बोले। कितने, 2 घंटे कथा की। फिर वो सेवक ने टेम्परेचर मापा तो नॉर्मल हो गया था। कि स्वामी आपने तो ताव है नहीं, ताकि हम जब चाहते तब लेते हैं और चाहते तब छोड़ देते हैं। प्रार्थना प्रेयर करना वो कंसंट्रेशन फॉर्म में प्रेयर होती है। गुरु जी ऐसा है, स्वामीनारायण 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 स्वामीनारायण। जिस तरह से हम बोले कि आप दौड़ो तो आप दौड़ते दिखाई पड़ते, दौड़ते ऐसे। कि पाछળ कोई कुत्ता लग जाए तो फुल कैपेसिटी से दौड़िए। हम ऐसे धुन करते हैं स्वामीनारायण स्वामीनारायण, पर ऐसा बन जाए तो तीव्रता से धुन होते। कैसे तीव्रता से धुन होती है, वही उसको कराना है। सहजानंद स्वामी महाराज की जय। आप सबको धन्यवाद। पंजाब में रहते भी गुरु जी का काम कर रहे हो, बहुत बड़ा काम करते हो।
દ્રષ્ટિ પડતા વેત જોગીના કામણ એવા થાય. દ્રષ્ટિ પડતા વેત જોગીના કામણ એવા થાય. ગુરુ આજ્ઞાના પગલે પગલે, ગુરુ આજ્ઞાના પગલે પગલે, સાહેબ જોગીના રંગે રંગાય, સાહેબ જોગીના રંગે રંગાય. ગુરુ આજ્ઞાન શીશ ધરીને, ગુરુ આજ્ઞાન શીશ ધરીને, ગુરુ સભાયો જાય. સાહેબ જોગીના રંગે રંગાય. સાહેબ જોગીના રંગે રંગાય. કાલે આપ વાત કરી હતી ને કે આપણે કંઈ પોતાની કસર અમારી કસર હોય તો એ ટાળવા માટે પણ સાધુ પોતાના ગ્રહણ કરે આવી રીતે બીમારી. તો એવી અમારી કઈ કસર છે એ આપ કૃપા કરીને બતાવો જે અમે ટાળીએ. આપ બળ આપો એ ટાળવા માટે. બાપાને કોઈ પ્રશ્ન હોય, એ કસર કઈ? હા. તો બાપા બોલે મહિમા સમજવાની. જેવું છે તેવું સ્વરૂપ. માનવ રૂપે જ્યારે વિચારતા હોય, મહારાજને વિશે મનુષ્ય આવી જતો હતો ને, બાપાને વિશે આવી જાય કે આટલું ઠીક કરે છે ને આટલું ઠીક નથી કરતા, એ થાય પણ મનુષ્ય ભાવ. સાંગોપાંગ જે કરે છે અનંત જીવોના રૂડા માટે કરે છે. એવું 24 કલાકને 12 મહિના સ્વપ્ન, જાગ્રત, સ્વપ્ન, સુષુપ્ત અને અવસ્થામાં એ દે એ મહાત્માની કસર, એ ગુણાતીત ભાવ. એ ભાવને પમાડવા છે. એટલે દરેકની કસર જુદી જુદી. ખ્યાલ આવે? કામ ક્રોધા એક દોષ કે એક કસર નથી. ગુણાતાન સ્વામીએ કહ્યું કામ ક્રોધાદિક દોષ એ મૂરાના ચોર જેવા છે. કેવા? મૂળાના ચોર. તમારી વાડીમાં મૂરા કરે હોય, મૂરા એટલે ખબર ને? મૂલી. મૂલી. એ કોઈ ચોર ખેંચી જાય તો તેને પકડો, તેને ફોંચીએ ચડાવો, 2 થપ્પાટ મારીને છોડી દો. तो काम क्रोध के दोष ये मूली के चोर जैसे है, उनको कुछ ये नहीं करना. तो पूछू चोर कौन? तो भाव फेर लेवડાવે છે, અભાવ કરાવે છે એ ચોર. આજે કામ ક્રોધ દોષ છે ને દેહના છે. કોના છે? ફિઝિકલ બોડીના છે. એ જ્યારે ફિઝિકલ બોડી છોડી દઈશું તો અગ્નિ સંસ્કાર ભેગા બળી જશે. જોડે નહીં, કેરી ફોરવર્ડ નહીં થાય. જે કેરી ફોરવર્ડ થાય છે એ દોષ આત્માનો દોષ. કેવો દોષ? આત્માનો. એ દોષ એટલે પ્રત્યક્ષ ભગવાનના સ્વરૂપને વિશે મનુષ્ય ભાવ, ભાવફેર ને ભગવાનના ભક્તોનો અભાવ. આ 2 વસ્તુ આત્માને વર્ગી. જો અભાવ લો તો તમે આત્માનો દોષ થયો, ભાવફેર કરો આત્માનો દોષ થયો, અને એ તમને કેરી ફોર થાય. બીજા જન્મે પણ તમને ઇન્ટરફિયર થાય. ખ્યાલ આવ્યો? એટલે ફોકસ કર્યું મહારાજે. નિયમધર્મ પાડવાનું તો કહ્યું, એ તો તમે સિવિલાઇઝ થયા ત્યારે. તમે પહેલાં તો વાનરો કપડાં પહેર્યા વગર ફરતા હતા. હવે કોઈને કહેવું પડે કે તમે સવારના પરમાં ઉઠીને સારા કપડાં પહેરીને બહાર નીકળો, ભાષણ કરવું પડે? વાળ બાળ ઓરીને નીકળો. સિવિલાઇઝ થાય એટલે આ તો ઓટોમેટિક આવે. એટલે સ્વામિનારાયણ થાય એટલે અમુક નિયમધર્મ તો આવવાના જ છે. એના માટે ભાષણો ના કરવાના. હવે ફોકસ એના પર કર્યું કે પ્રત્યેક સ્વરૂપને વિશે, સત્પુરુષને વિશે ભેગા રહેતા હોઈએ ત્યારે આપણને અનનોઈંગલી થાય ઘણી વખત કે આ બરાબર ના કહ્યું, આ ઠીક થયું નહીં, આ વર્ત્યા. એની કોઈ ક્રિયામાં આપણને
માયિક ભાવ આવી જાય, મનુષ્ય ભાવ આવી જાય આપણા જેવો. એ કસર ટાળવા માટે આપણી વૃત્તિ એનામાં ખેંચી લે એટલે પ્યોરિફિકેશન થતાં કસર ટળી જાય. ખ્યાલ આવે? એક તો એમનો મહિમા સંગોપાંગ અને સંબંધવાળા ભક્તોનો પણ એનો જે મહિમા એ પણ એવો જ હોવો જોઈએ તો કસર ટળી જાય. સત્પુરુષ વિશે સમ્યક નિર્દોષ ભાવ થાય પણ ભક્તોન વિશે ના હોય તો પછી એ પણ કસર કહેવાય મહિમાની. એટલે એ કસર જે છે ઝીણી ઝીણી કસર કહેવાય. કઈ કહેવાય? ઝીણી. તમને ખ્યાલ ના આવે, તમે ક્રોધ છે મોટી કસર, તમને ખબર પડે કે આ માણસ ગુસ્સે થયો. તમે આ બાજુમાં બેઠા છે અગ્રવાલનો એ ભાવ ફેર કરો અંદરથી, કોઈને ખબર પડે? એ ઝીણી કસર એ તમને જ ખબર પડે. તો એ ટાળવી છે મારે બેઠે. એટલે બધા દિવ્ય છે દિવ્ય છે દિવ્ય છે એ ભજન કરવું. ગુરુજી સાથે જોડાયેલા બધા જ દિવ્ય છે એ થઈ જાય. ટાળવા માટે ભજન જ કરવાનું. ભજન એમની આજ્ઞાને અનુરૂપ સેવા, કથા વાર્તા, એટલે એમનો મહિમા વધતો જાય. એમને રાજી કરો એમની આજ્ઞાથી. મન કર્મ વચન સેવા, 3 પ્રકારની સેવા છે. મને કર નિર્દોષ માની, વચન કહીને ગુણગાન મહિમા ગાઓ, કર્મે કરીને દેહે કઈ છે. દેહે મોટા ઉંમર થઈ ગઈ એટલે કોઈ કરવા ના દે, અગ્રવાલને કરવા દે તો ધને કરીને સેવા કરો. ખ્યાલ આવે? ત્યાંથી ભગવાનની પ્રસન્નતા, ભગવાનની પ્રસન્નતા એ કસર ટાળી દે. આશીર્વાદ આપજો, બળ આપજો, ગુરુજીને રાજી કરીને જલ્દી થઈ જાય. આપણને લીધા છે એટલે મહારાજે ગુણાતીત અંશ ભગવાનનું ધામ ગુણાતીત છે. સૌને ગુણાતીત કહે. આપણને બધાને શું બનાવે છે? સામાન્ય ભગત નહીં બનાવવા, એમના જેવા એમના રૂપ બનાવવા છે. એટલા બધી એ પોતે ભીડો લઈ રહ્યા છે. ખ્યાલ આવે? એટલે બાપાના ભીડાને જે કોઈ જાણે એની આંખમાંથી આંસુ આવે. ખ્યાલ આવે? ગુરુજીને એવું છે. આ બધા સંતો તૈયાર થાય એટલે સહેલું થઈ ગયું. આનંદ દીદી ધન્યવાદ ઘટે. હા, એને તમારી સાધના સરળ બનાવો એનો બહુ મોટો ફાળો છે. ગુરુજન વિશે દિવ્ય ભાવ નિર્દોષ ભાવે રખાઈને જે સેવા કરાઈ એનો બહુ મોટો ફાળો છે. જાગતાલ જોગી ન સત્સંગ માં જઈ, સાહેબ જોગીના રંગે રંગાય, સાહેબ જોગીના રંગે રંગાય. ગુરુ આજ્ઞાન શીશ ધરીને, ગુરુ આજ્ઞાન શીશ ધરીને ગુરુ સભાયો જાય. સાહેબ જોગીના રંગે રંગાય, સાહેબ જોગીના રંગે રંગાય. સંસારી સુખોનો ત્યાગ કરીને યોગીના શરણે સમાય. સંસારી સુખોનો ત્યાગ કરીને યોગીના શરણે સમાય. નિશ્ચય કરીને નિશ્ચિંત થાતા, નિશ્ચય કરીને નિશ્ચિંત થાતા. સાહેબ જોગીના રંગે રંગાય,
धरी